So hi everybody, this is Saurabh Thakur here, and today we will talk about Michel Foucault. He was a French philosopher, and he has given us tremendous works and terms in literary theory. And see, we are focused on net only, and we will study everything from net perspective. So for us, his works and terms are important. His works and the terms he has given, and I will try to explain those terms as brief as I can. So let's start with Michel Foucault. Michel Foucault. Some people write Michael. So the spelling is Michel, not Ael. So this is Michel Foucault, right? And straightly I will come to the works. First work is Madness and Civilization. Madness and Civilization, and the subtitle of this particular work is The History of Insanity, Pagalpan. The History of Insanity in the Age of Reason. And this work came in 1961, right? And the next work is The Birth of the Clinic. The Birth of the Clinic. ठीक है, क्लिनिक का जन्म. अब ये जन्म पता नहीं कैसे किया इसने. सो इसके सबटाइटल की बात करते हैं. समटाइम्स दे कैन आस्क यू सबटाइटल्स एज वेल. सो द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, द सबटाइटल इज एन आर्कियोलॉजी ऑफ मेडिकल परसेप्शन. ये बंदा जो था ये बहुत वर्सेटाइल था. ही हैज टॉक्ड अबाउट मेडिकल साइंस ऑल्सो, ह्यूमन साइंस ऑल्सो, एंड अबाउट पावर, नॉलेज, and something about prison, discipline, madness, civilization, many things. So we will come to know more about him. And archaeology. So archaeology is the study of culture, the old culture, right? Archaic things means ancient cultures. And archaeology of medical perception, and this work came in 1963, right? And the third work is The Order of Things. The Order of Things, and the subtitle is somewhat similar to this subtitle. So here we have an archaeology of medical perception, and here we have an archaeology of human sciences. And this work came in 1966, right? ये तो हो गए इसके 3 वर्क्स. इसे जरूर याद कर लेना, बिल्कुल. Learn them by heart. And then we will go to the next work, which is Archaeology of Knowledge. Archaeology of Knowledge. Further, you will find that he talks about 2 things so much. Number 1 is power, and the second one is knowledge. So, Archaeology of Knowledge, 1969. Then we have next work, which is very important, Discipline and Punish. मतलब ये बंदा छोड़ेगा नहीं, ये सजा भी देगा और डिसिप्लिन भी बनाएगा. और किस तरह का डिसिप्लिन होगा, किस तरह की पनिशमेंट होगी, वो सब टाइटल में पता लगेगा. द बर्थ ऑफ द प्रिजन, जेल का जन्म. अब हाउ अ प्रिजन मस्ट बी, ही विल टेल अस फर्दर. एंड दिस वर्क केम इन 1975. एंड देन वन मोर वर्क केम, द हिस्ट्री ऑफ sexuality. The history of sexuality, 1 year after this work, means in 1976, right? तो ये तो हो गए कुछ वर्क्स जो कि आपको पता होने चाहिए और आपको याद करने हैं, ये बाय हुक और क्रुक, राइट? So next, let me tell you that he talks about 2 things so much, as I told you. Number 1 is power, and the second one is knowledge. Power and knowledge. Power, knowledge.
So before this, let me talk about episteme or episteme. Episteme is the correct pronunciation. Episteme. So episteme is actually knowledge. एपिस्टीम का क्या मतलब है? नॉलेज. तो एपिस्टीम जो है वो भी इससे रिलेटेड है पावर और नॉलेज से, राइट? एंड दिस एपिस्टीम ही टॉक्स अबाउट दिस थिंग इन हिज वर्क द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, राइट? ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं कि एपिस्टीम जो है वो कौन से वर्क में ये बात करता है. तो नेक्स्ट, पावर और नॉलेज का क्या कॉन्सेप्ट है? मीन्स इफ यू हैव नॉलेज यू हैव पावर. Just for example, now at this moment I have knowledge about Michel Foucault and I am just giving this lecture, right? So I have the power. I have the power to give you anything and you are nobody, or means you are bound that you cannot stop me. If I am giving you lecture, I have power because I have knowledge. And I am controlling you people. Why? Because you have no knowledge about Michel Foucault. That's why you are watching this video. राइट? तो वो है जब मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास ज्ञान है, तो मेरे पास ताकत भी है, राइट? और व्हेन आई हैव पावर देन आई कैन क्रिएट अ नॉलेज ऑफ माइंड. जस्ट फॉर एग्जांपल वी हैव प्रीस्ट एंड फादर्स, जो भी है हमारे रिलीजियस जो गॉड होते हैं या फिर उनके जो रखवाले होते हैं, दे हैव पावर, दे हैव नॉलेज, नो डाउट, बट दे हैव पावर. नाउ फ्रॉम दिस पावर दे कैन क्रिएट एनीथिंग. पावर है, they are talking to people and people are listening to them. Now they can mold people to any side, right? तो उनके पास पावर है. तो यही जो पावर और नॉलेज है इसके बारे में बात करता है. एपिस्टीम इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस पावर एंड नॉलेज कॉन्सेप्ट, राइट? एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव genealogy. Genealogy, and genealogy as the word suggests, it is related to genes. Genealogy, right? Genealogy means related to your genes. Genes का मतलब, लेकिन यहां पर particularly he doesn't talk about genes. ये वाली जो genes है इसका मतलब है कि genealogy according to him is that when you go back into the history, right? You go back into the history and then you look for some different thing. See, he is a post-structuralist. और जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं वो किसमें बिलीव करते हैं? दैट देयर इज नो फिक्स मीनिंग, देयर इज नो फिक्स स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चरलिज्म वाले जो लोग हैं, दे अकॉर्डिंग टू देम देयर इज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू अ स्ट्रक्चर. मैंने वीडियो बनाई है स्ट्रक्चरलिज्म पे भी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में भी. ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की एक सीरीज चल रही है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में खत्म करके ही जाऊंगा. इससे पहले आई हैव टॉक्ड अबाउट रोला बार्ट्स एज अ स्ट्रक्चरलिस्ट, एंड स्ट्रक्चरलिज्म की भी मैं वीडियो बना चुका हूं, वो भी आप चेक कर सकते हो, तब आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी, राइट? तो ये जीनियोलॉजी का मतलब है कि आप अपनी हिस्ट्री में जाके, यू गो बैक टू द हिस्ट्री, देन यू लुक फॉर समथिंग डिफरेंट, राइट? और उस टाइम पे एक डिस्कोर्स हो सकता है, उस चीज को आपने सामने लेके आना है. डिस्कोर्स टर्म आई गई है ना, जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है. कई बार किसी सेट एग्जाम में तो डायरेक्टली पूछा था कि द टर्म डिस्कोर्स इज रिलेटेड टू, और वहां ऑप्शंस थे 3-4 थियरीज से, तो मिशेल फूको वाज द राइट आंसर. सो डिस्कोर्स जो है मिशेल फूको का, डिस्कोर्स का मतलब सिंपली क्या होता है? डिस्कशन, ठीक है? या फिर सेट ऑफ बिलीफ्स भी कह सकते हैं आप, राइट? तो जीनियोलॉजी का भी एक यही मतलब है कि पुराने समय में जाके सेट ऑफ बिलीफ्स को चेंज करना और कुछ नया लेके आना. और उस वक्त जो डिस्कोर्स है, हो सकता है कि जो हमें दिखाया जा रहा है उससे हटके कुछ हमें पास्ट में मिल जाए, तो वो जीनियोलॉजी है. बस आपने इतना याद रखना है दैट जीनियोलॉजी इज अ कंसेप्ट गिवन बाय मिशेल फूको and discourse is also a concept given by this person, and discourse means discussion, set of beliefs, या फिर जो कुछ भी है, जितने भी set of powers है, या फिर knowledge है, या फिर genealogy है, या फिर episteme है, सब कुछ discourse में आता है. एक discussion, discourse एक बहुत बड़ा word है जिसमें कि सब कुछ आएगा आपका. कोई भी किसी चीज के ऊपर discussion है, किस तरह से हम अपनी ताकत से कंट्रोल कर रहे हैं, सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन से वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं एक दूसरी चीजों को, क्या कुछ हमारी सोसाइटी में क्या नॉर्म्स है, क्या बिलीव्स है, कैसे जीना है, क्या करना है, कैसे खाना पीना है, सब कुछ जो है डिस्कोर्स में आता है, राइट? तो डिस्कोर्स का ये वाला कॉन्सेप्ट है. मेरा डस्टर बड़ा नीचे गिर चुका है, राइट? एंड देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज
Yes, panopticism, very important. Panopticism, see, there can be many things in this video which you are not familiar with, and do not think that I'm not giving you things which you are already familiar with, but you can find something different in this video. So panopticism is also a term given by Michel Foucault, and this comes from the work Discipline and Punish, the birth of the prison. तो पेनोप्टिसिज्म जो है, पेनोप्टिसिज्म एक प्रकार का, पेनोप्टिकॉन एक वर्ड है. पेनोप्टिकॉन क्या होता है? पेनोप्टिकॉन इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन सी एवरीथिंग, राइट? जैसा कि जेल्स आपने देखी कैसे बनती है, इस तरह से राउंड में कोई बिल्डिंग बनी है, ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बने हैं, उसमें ये खिड़कियां बनी है, ये खिड़कियां बनी है, चारों तरफ खिड़कियां बनी है ऐसे, राइट? फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मान लो ये चारों तरफ खिड़कियां बनी है, मंजिलें हैं 3-4, और यहां बीच में एक टावर है, बीच में एक टावर है जिसमें एक बंदा है, वो सभी को देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है. तो ये जो पेनोप्टिकॉन, ये जो पेनोप्टिसिज्म का आइडिया है, ये मिशेल फूको का इससे रिलेटेड है कि जब ये है आपका कंट्रोल करने का, कि जो आपकी पावर है आप कैसे कंट्रोल करते हो लोगों को. तो ये जो प्रिजन में भी ऐसा होता है, या फिर आप किसी कॉलेज में जाओ, वहां पे जो बीच में कोई ग्राउंड होता है तो उसके आसपास ऐसे बिल्डिंग होती है, तो यहां से आप सभी को देख सकते हो. हमारे टाइम में जब कॉलेज में पंगा हुआ करता था तो कोई नारेबाजी हो रही है तो हम ऐसे इस ग्राउंड में जाके करते थे, बीच वाले ग्राउंड में, जहां से सारी चारों तरफ से बच्चे हमें देख सके कि हाँ ये कुछ कर रहे हैं, पंगा हो रहा है तो भी यहाँ हो रहा है, कोई नारेबाजी हो रही है, कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है तो वो भी यहाँ हो रहा है. तो ये जो यहां से ये जो हर जगह आप देख सकते हैं और हर कोई आपको देख सकता है, राइट? तो ये है पेनोप्टिसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसका. नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोपॉलिटिक्स. बायोपॉलिटिक्स, राइट? अब ये बायोपॉलिटिक्स क्या है? बायोपॉलिटिक्स मींस रिलेटेड टू योर बायोलॉजी प्लस पॉलिटिक्स. अब आप सोचोगे बायोलॉजी पे पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है? क्यों नहीं होती है? हमारे इंडिया में योर आधार कार्ड इज द एग्जांपल ऑफ बायोपॉलिटिक्स. हालांकि बायोपॉलिटिक्स इज अ टर्म गिवन बाय समबडी एल्स, बट ही टॉक्स अबाउट बायोपॉलिटिक्स, राइट? एंड जियोपॉलिटिक्स भी एक टर्म है, वो किसी और बंदे ने कॉइन की है, लेकिन ही टॉक्स अबाउट बायोपॉलिटिक्स. सो वी विल टॉक अबाउट दिस ओनली. सो बायोलॉजी प्लस पॉलिटिक्स मीन्स पॉलिटिक्स ऑन योर बायोलॉजी. अब आधार कार्ड में सभी का पता है दैट हाउ मेनी मेल्स आर देयर, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, हाउ मेनी ट्रांसजेंडर्स आर देयर. सो दे विल कन्विंस पीपल अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी, कि कितने आपके पास मेल है, तो उस हिसाब से उनको कन्विंस करना है, उस हिसाब से वहां रैलीज होगी, उस हिसाब से पॉलिसीज बनाई जाएगी. तो आपके जेंडर पे, आपकी बायोलॉजी पे जो पॉलिटिक्स होती है, ये बायोपॉलिटिक्स. देखो कौन सी 20th सेंचुरी में दिस पर्सन नोज दैट व्हाट इज बायोपॉलिटिक्स, एंड इन 21st सेंचुरी वी आर नॉट अवेयर दैट व्हाट बायोपॉलिटिक्स एक्चुअली इज. हम बड़े खुशी से जाके आधार कार्ड बनवाते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें और हम करते हैं, लेकिन हमारी जो प्राइवेसी है कितनी रिवील हो रही है, हमें इस बात का अंदाजा नहीं है. तो ये बायोपॉलिटिक्स की ये बात करता है. तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ. सो इस वीडियो में जो मैंने वर्क्स बताए हैं उन्हें याद कर लो कि ये मिशेल फूको के वर्क्स है, उनकी डेट्स याद कर लो, राइट? और जो मैंने इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उसको याद कर लो कि ये मिशेल फूको ने दिए हैं, राइट? सो इतने में हमारा काम बन जाएगा. इस वीडियो में फिलहाल इतना है, ठीक है? बाय. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. दाना मल्टीटास्कर इज देयर. एंड थैंक यू सो मच. बाय. इफ यू रियली एंजॉयड द वीडियो, you can do anything you like. Bye.